We praise God for this morning. इस सुबह के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, Let's bow down in prayer. प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come to your throne of grace. We are feeble, fragile people living in the presence of sin, battling sin in our own life. And as we gather this morning, it's not our holiness that we long for. It's the holiness that we see in you, O Lord. Holiness which is brought to us through love that we see exemplified, displayed on the cross. Out of that love, O Lord, speak to our hearts this morning. Warm our hearts, our cold hearts with your word, so that we are transformed, so that the meditations of our heart would be acceptable in your sight. We ask this in Jesus' precious name. December brings a Christmas season. दिसंबर आते ही क्रिसमस का माहौल जो है वो हमारे आसपास में आ जाता है। In the Christian world, this is the beginning of December, end of November, December. It's called the Advent time. और मसीही जगत में जब हम देखते हैं तो नवंबर के अंत का और दिसंबर के शुरुआती समय को एडवेंट के नाम से जाना जाता है। So what I intend to do from here for the next 3 to 4 weeks is present to you what Bible tells us all about the story of Jesus Christ surrounding his birth and his personhood. और इसलिए इस सप्ताह में और आने वाले कुछ सप्ताहों में मैं ऐसा करूंगा कि बाइबल क्या बताती है प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आने के बारे में, उसके जन्म के बारे में, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। So we'll start away with a far-sighted view of the birth of Jesus Christ, or in other words, a Christmas, and then we'll keep moving towards that point in history. और हम लोग ऐसा करेंगे कि हम दूर से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जो बात है उसको हम देखते हुए धीरे धीरे हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में और करीब से देखने की कोशिश करेंगे। So today's sermon is all about a promised deliverer. आज का संदेश जो है वो प्रतिज्ञा किए हुए छुटकारा देने वाले के बारे में है। And we find this in the passage that we read, that Justin read this morning. और आज जो भाग भाई जस्टिन ने सुबह पढ़ा उस भाग में हम इसको पाते हैं। There are 3 things that I want to draw your attention to this morning from this passage. आज की सुबह इस भाग से मैं 3 बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। One is the deception that the world is befallen to. पहली बात यह है कि उस धोखे के प्रति मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें दुनिया फंस गई है। 2, we're going to talk about us, the deceived ones. और दूसरे बिंदु के रूप में हम ये देखेंगे कि कौन है ऐसे लोग जो धोखा खा गए हैं या जो फंस गए हैं। And because we are deceived by the deception that is brought into this world, we need a deliverer. और तीसरे बिंदु के रूप में देखेंगे चूंकि हम धोखा खा चुके हैं या धोखे में बहकाए गए हैं, फंस चुके हैं, और इसलिए हमें छुटकारा देने वाले या मुक्तिदाता की जरूरत है। The world loves superhero movies. अगर हम दुनिया की बात करें तो हम सभी लोग जो सुपर हीरोज होते हैं, बहुत बड़े बड़े हीरोज होते हैं, उनके बारे में हम फिल्में पसंद करते हैं। My favorite character is Kung Fu Panda. Doesn't look superhero, but I just love him. और मेरा जो बहुत ही पसंद का किरदार है वो कुंग-फू पांडा है। वो हीरो जैसा दिखता नहीं है लेकिन मुझे पसंद है। But this morning I'm going to present to you a superhero. He's unlike any of the superheroes that you have seen. लेकिन आज की सुबह जिस महानायक को मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो दुनिया में हम जिन महानायकों के बारे में बात करते हैं उनके जैसा बिल्कुल नहीं He है। has no mask, no costume for himself. कोई मुखौटा नहीं है, कोई पोशाक नहीं है अपने लिए। He just has love for us. सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए प्रेम है। So would you dive with me to chapter 3 of book of Genesis? तो इसलिए आइए तीसरे अध्याय में मेरे साथ में हम आगे बढ़े। We start off with the deception that has befallen this world. इस दुनिया को जिस तरीके से बहकाया गया है, जिस बहकावे में ये दुनिया पड़ गई है उसके बारे में हम बात To करें। understand why we need, I have entitled my sermon as Promise of a Deliverer, but why do we need a deliverer in the first place? मैंने अपने इस संदेश का शीर्षक रखा है छुटकारा देने वाले का वायदा या मुक्तिदाता का वायदा। लेकिन सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता यह है कि हमें इस दुनिया को मुक्तिदाता की या छुटकारा देने वाले की जरूरत ही क्यों पड़ी। Christmas is not just about the warm fuzzy lights that you and I hang and the cakes that we eat and the dinner that we would want to have. Christmas is all about a deliverer. क्रिसमस के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, जो बहुत ही गर्मजोशी से भरी हुई सुंदर सुंदर ज्योति हम देखते हैं, छोटे छोटे लाइट्स देखते हैं, या हम खाने के बारे में बात करते हैं, केक के बारे में बात करते हैं, क्रिसमस सिर्फ वही नहीं है। लेकिन क्रिसमस जो है वास्तव में इस मुक्तिदाता के बारे में है, छुटकारा देने वाले के बारे में है। To understand why we need a deliverer, we need to understand the deception that has befallen the world. और
मुक्तिदाता की जरूरत इस दुनिया को क्यों पड़ी, छुटकारा देने वाले की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात को समझने के लिए हमें ये जरूरी है कि हम ये समझें कि ये दुनिया जो है वो बहकावे में फंस गई है। Okay, what does the word deception mean? जब हम बहका देने या धोखे में पड़ जाने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता That है? is to cause someone to accept as truth, which is a falsehood. दूसरा इसका कहने का मतलब ये है कि हम जब ये कहते हैं कि हमें बहका दिया गया है या हम धोखे में पड़ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि किसी को ऐसी बात को सच करके बता देना जो वास्तव में झूठ है। Unless we know what the deception is, we don't know why we need a savior. जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि बहकावा क्या है, धोखा खाना क्या है, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में छुटकारा देने वाले की जरूरत क्या है। So, when you look at Christmas or the Advent that we are going through, to make sense, we have to make this statement. और इसलिए अगर हम क्रिसमस को समझना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में समझना चाहते हैं, उसके पहले की घटनाओं को समझना चाहते हैं, तो हमें इस बात को समझना जरूरी होगा। That is, humanity has been deceived to believe that we can reinterpret life without God as our central reality. और वो जो जरूरी बात जिसको हमें समझना जरूरी है वो ये है कि हम मनुष्यों ने इस बात पे भरोसा कर लिया है कि हम अपने जीवन को बिना परमेश्वर के ही चला सकते हैं। The story of man is this, that man has declared autonomy, sovereignty by himself, by declaring him to be the God of his own life, and therefore no more being dependent on his creator. अगर हम अपने मानवों की कहानी देखें तो मनुष्य का इतिहास ऐसे है कि मनुष्य ने ये घोषणा कर दी है कि हम जो है वो खुद पे निर्भर हैं, हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है और हम खुद परमेश्वर बन गए हैं। So the story of Christmas is all about the recalibration of our heart, to recenter it on the reality of who God is, so that we find the true meaning to our own lives. और इसलिए क्रिसमस की कहानी और कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि हमारे दिल जो सही रास्ते से भटक गए थे उनको हम फिर से सही जगह पर लगाएं और हम उस मुक्तिदाता के बारे में समझें। So what this chapter highlights to us is the problem of distrust and evil and sin, and why therefore we need this Redeemer. और इसलिए इस पाठ में जो हम पढ़ते हैं तो उसमें इस समस्या के बारे में बताया गया है कि क्या है बुराई की समस्या, क्या है एक दूसरे पे भरोसा ना करने की समस्या और किस प्रकार से इससे छुटकारा हम पा सकते So हैं। when you read verses 1 to 5, इसलिए जब आप पहली आयत से लेकर के 5वीं आयत तक पढ़ते you हैं see a serpent creature entering the garden which God had created for Adam and Eve. आदम और हव्वा के लिए परमेश्वर ने जिस बगीचे को बनाया था उस बगीचे में हम सबको प्रवेश होते हुए देखते हैं। Now it's quite tempting to ask the question, who is this creature? Where is he coming from? What explains his presence? और ये बड़ा हमारे दिमाग में अच्छा लगता है कि हम इसके बारे में पूछे कि ये जो प्राणी है, ये सर्प है, वो उसको किसने बनाया, किस प्रकार से वो वहां पर पहुंच गया। Well, all of these questions are valid enough, but Bible is unapologetic to give you and I no answer as such. ये सही बात है कि इन सवालों का पूछना वाजिब है, लेकिन बाइबल जो है इसके बारे में कुछ नहीं बताती। Why doesn't Bible give you an answer on what this creature is all about? It is because the Bible is a book about God and man. इस प्राणी के बारे में बहुत सारी बातें बाइबल क्यों नहीं बताती? क्योंकि बाइबल जो है वो मनुष्य और परमेश्वर के बारे में बताने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। Bible is here to explain to us what went wrong with us. बाइबल यहाँ पे इस बात को हमारे सामने लाना चाहती है कि हम मनुष्यों के साथ में, मानव जाति के साथ में क्या गलत So हुआ। this morning I don't want you to lose your mind on wondering where, how, which, what, why of this creature, but rather look at the realities that you and I face in our life, evaluate it with what we see in Scripture, and understand to accept God's word in our life. और इसलिए आज की सुबह मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारा ध्यान जो है उस बात पे लगा रहे कि हाँ सांप कहाँ से आया, किसने बनाया, कैसा था, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं और उन सच्चाइयों के साथ में हम कैसे पेश आए उस पे हम ध्यान Now, लगाएं। if you want to know more about this creature, we'll have a broader discussion later on. But as of now, this morning, my focus is the question that he is asking. अगर इस प्राणी के बारे में यानी कि सर्प के बारे में अगर हम ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हम बाद में कभी इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आज की सुबह ये प्राणी जो सवाल करता है उस सवाल पे मेरा ध्यान होगा। The question has that serpentine deception infused in it. और जब वो सवाल करता है तो उस सवाल में ही सांप का जो बहकाने वाला एक इरादा है वो साफ झलकता है। So what does he say in verse 1b? That's the second portion of 1. He said to the woman, did God really say? और पहली आयत के दूसरे भाग में हम देखते हैं क्या कहता है वो प्राणी, वो सांप कहता है कि क्या वास्तव में परमेश्वर ने ऐसा कहा है। Now that's a
That's a snarky, sneery question, uh, trying to laugh off the command of God. और ये एक ऐसा सवाल है, फंसाने वाला सवाल है या किसी का मजाक उड़ाने वाला सवाल है। You see, he is not questioning the existence of God. यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि वो परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में सवाल नहीं कर रहा है। He is not saying that, oh, you see, there is a better theory where there are big bang happened and God didn't create you. You know, you just arrangement of atoms and molecules and you just happen to be. That is not the discussion here at all. Do you see that? There is no existential question. There's no question about the existence of God. The serpent doesn't come to them and say, oh, look, I have a doubt question for you. That's a serious philosophical question. Does God really exist? That's not the question. और यहाँ पे शैतान इस बात के लिए नहीं आता है कि वो आदम और हव्वा से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने जो है एक सवाल लेकर के आता हूँ कि आपकी जो उत्पत्ति है वो इस तरीके से नहीं हुई। आपकी उत्पत्ति तो एक बड़े धमाके के साथ में हुई है, अणु और परमाणु एक साथ में मिल गए और उसके बाद में आप पैदा हुए हैं। मैं तुम्हारे सामने एक संदेह लेकर के आता हूँ। देखिए, इस संदेह पर आप विचार करिए। नहीं, ऐसा वो नहीं कहता, बल्कि वो बिल्कुल अलग सवाल लेकर के He hits at the character of God. वो सीधे सीधे चोट करता है परमेश्वर के स्वभाव पर, The character which portrays the goodness of God. उस स्वभाव पर जिस स्वभाव के कारण परमेश्वर की अच्छाई को दिखाया God जाता placed है। them in the garden, परमेश्वर ने उनको उस बगीचे में रखा, placed the tree in the garden, वहां पे पेड़ों को भी रखा asked them to eat of all the trees that are there in the garden, और उस वाटिका में जितने भी पेड़ थे सबके फलों को खाने के लिए, but asked them not to eat of one tree in the garden. लेकिन सिर्फ एक पेड़ के फल को खाने के लिए मना कर दिया। And the woman is tripped over into overthinking this particular command of God. और परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, जब शैतान ने ऐसा बोला तो स्त्री जो है इसके बारे में ज्यादा सोचने लगी। Why a tree in a garden and why a command not to eat of the tree? तो सोचने लगी कि किस प्रकार से पेड़ तो है वाटिका में, लेकिन उस पेड़ के फल को खाने के लिए मना क्यों किया गया? Because that tree represented loyalty of love and affection and relationship between God and man. क्योंकि वो उस पेड़ का जो फल है और उस आज्ञा के द्वारा मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक जो वफादारी है, जो रिश्ता है, वो दिखता था। Because love by its nature has an effect of law in it. क्योंकि अगर आप प्रेम की बात करें तो प्रेम स्वाभाविक रूप से उसमें एक व्यवस्था जुड़ी हुई है। So when one boy tells a girl that I love you and I will be committed to you, he's actually making promises of love and law. He's making love a law to his own life. और इसलिए जब एक लड़का एक लड़की से कहता है कि मैं तुमसे हमेशा प्रेम करूंगा, तो वो एक तरीके से एक व्यवस्था को, एक नियम को कह रहा है। वो कह रहा है कि प्रेम जो है वो एक नियम है और इस नियम के आधार पे मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। So when God tells them don't eat of the tree, God is all that God is trying to tell them is you bank on me, you lean on me, you trust on me, you be in a relationship with me. I know what is good for you. I am your creator, you are the creature. I am here for your goodness. और इसलिए परमेश्वर जब आदम हव्वा से कहता है कि तुम इस पेड़ के फल को नहीं खाना, तो एक तरीके से परमेश्वर उनसे कह रहा है कि आदम और हव्वा तुम मुझ पे ही निर्भर रहना, तुम अपने ऊपर निर्भर नहीं रहना, इस प्रकार से तुम मुझसे वफादारी करना और मेरी जो भलाई है उस पर तुम भरोसा करना। Without a tree, a particular tree from which he was refrained to eat, man becomes a puppet in the hands of God, because there is no choice that he makes to be in relationship with God then. अगर वो पेड़ नहीं होता, उस पेड़ के फल को ना खाने की आज्ञा नहीं होती, तो होता ये कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के हाथों में सिर्फ एक खिलौना बन करके रह जाता। वो अपने हिसाब से चुनने के लिए आजाद नहीं होता और कोई रिश्ता नहीं हो सकता था। Because God created man for relationship, not for ambition. क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की है रिश्ते के लिए, संगति के लिए, महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं। At the core of your heart, you and I long for relationships, meaningful, true relationships. अगर हम सब अपने दिल की गहराइयों में झांकने की कोशिश करें तो हम सभी लोग इस बात की आकांक्षा करते हैं, इस बात की दिली अभिलाषा रखते हैं कि हमारा किसी के साथ में एक अर्थपूर्ण, एक सच्चा रिश्ता हो। And in relationships we want loyalty, we want honesty, we want sincerity. और जब हम रिश्ते की बात करते हैं तो हम हर एक रिश्ते में वफादारी चाहते हैं, हम समर्पण चाहते हैं, उसमें हम ईमानदारी चाहते हैं। Now look at her response in verse 2.
दूसरी आयत पे जो जवाब आया उसको देखिए। She's unsure. All of a sudden, did God say that? I mean, how did he say that? Like, really? I mean, he said that to you? And as the serpent probed a little more, the lady is unsure now about the command of God. और जब शैतान ने इस प्रकार से बहकाने की कोशिश की सर्प के रूप में, सर्प ने जब इस प्रकार का सवाल पूछा तो हव्वा जो है वो ज़्यादा सोचने लगी और हड़बड़ा गई और वो उसके सवाल में फंस गई। All of a sudden, the question in our mind now is the goodness of God. What backs this command that God gives me to not eat of this tree? तुरंत ही हमारे मनों में भी ये सवाल आ जाता है कि जब ये परमेश्वर ने आज्ञा दी आदम और हव्वा को कि इस पेड़ के फल को नहीं खाना, तो हमारे मन में तुरंत ही आ जाता है कि परमेश्वर भला कैसे हो सकता है जब वो इस पेड़ के फल को खाने के लिए मना कर रहा So है। that sneery, snarky tone of the devil or the serpent now has got this woman thinking that this command is not out of the goodness of God. This command seems tyrannical. It is unleashing tyranny over my life. Who is God to decide for me? और इसलिए जब यहाँ पे सर्प जो है इस प्रकार से मजाक उड़ाने वाला, फंसाने वाला, बहकाने वाला सवाल पूछता है तो स्त्री को ऐसे लगने लगता है कि अरे परमेश्वर जो है, परमेश्वर की भलाई मेरे लिए वास्तव में अच्छी नहीं है। ये तो मेरे लिए एक तरीके से मेरे लिए मेरी आज़ादी को छीनने जैसा है या मेरे ऊपर अत्याचार करने जैसा है। जो भलाई मेरे साथ में होनी चाहिए थी वो भलाई मेरे साथ में शायद परमेश्वर नहीं करना चाहता। So the doubt is met now in verse 5 with a proposition. You see this? It's interesting now. The serpent juxtaposes the doubt in which he raised in the lady's heart with a proposition. And what is the proposition? Verse 5. और इसलिए अब सांप क्या करता है कि 5वें आयत में जो संदेह उसने पहली आयत में जगाया स्त्री के मन में, उस संदेह को वो 5वें आयत में एक आधार वाक्य देता है। वहां पे एक और वाक्य को साथ में ला करके उसको और मजबूत करता He है। says, you will be like God. और वो कहता है कि तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। Isn't that tempting? You will be like God. और क्या ये बात बड़ी दिलचस्प नहीं है कि अरे आप परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे? Isn't that what we want? I should decide for myself. Who are you? क्या हम ऐसा नहीं चाहते? हम क्या अपने मन में ये नहीं कहते कि मेरा जीवन है, मेरी मर्जी है, मैं अपने हिसाब से चीजें परिभाषित करूंगा? A commentator says to be as God and to achieve it by outwitting him is an intoxicating program. और परमेश्वर को बाहर करके खुद परमेश्वर के जैसे निर्णय लेना मतलब ये है कि परमेश्वर को बाहर कर देना और परमेश्वर को बिल्कुल निरादर करना है। So how do we become God? By killing the goodness of God. Finished. हम परमेश्वर कैसे बन जाते हैं? हम खुद के लिए अपने आप को कैसे परमेश्वर बना बैठते हैं कि हम परमेश्वर की भलाई को खत्म कर देते हैं और इस प्रकार से अपने आप को खुद ईश्वर बना बैठते हैं। So what we should like about God is now what we hate about God. इसलिए परमेश्वर के बारे में जो चीज हमें सबसे ज्यादा पसंद करनी चाहिए थी उसको हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। That is how it happens between a boy and a girl who break up. Whatever they liked about each other is what they will hate the most about each other. और इसीलिए जब एक लड़का लड़की जिनका प्रेम टूट जाता है तो वो भी जो चीजें उनको पहले प्रेम में सबसे अच्छी लगती थी वही चीजें उनको प्रेम में सबसे बुरी लगने लगती हैं। So in Romans chapter 1 verses 28 to 31, Paul would enlist a list where he would talk about how we have responded in sin towards God and how we have become people of violence and all of that. But there's one particular phrase he uses there which requires our attention this morning. He says we have become God haters. और अगर हम पौलुस के द्वारा लिखी गई रोमियो की पुस्तक को देखें तो वहाँ पे पहले अध्याय में 28 आयत से लेकर के 31 आयत में वहाँ पे उन चीज़ों की सूची बनाता है जिस प्रकार से हमने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। और वहाँ पे एक वाक्य का हिस्सा वो इस्तेमाल करता है और वो कहता है कि हम परमेश्वर से नफरत करने वाले बन गए हैं और उस पर गौर करना जरूरी है। That's the deception. We have been deceived to believe that God is not a good God. Therefore, He is a tyrannical God and therefore we should hate God. और वही वाक्य जो है कि परमेश्वर से नफरत करने वाले बन गए, इसी बात में सबसे बड़ा छलावा है, सबसे बड़ा
सबसे बड़ी बहकाने वाली बात है, धोखा खाने वाली बात है, क्योंकि हमको लगता है कि परमेश्वर जो है वो भला नहीं है, वो अत्याचारी हो गया है, उसने अपनी भलाई को हमें पूरी रीति से नहीं दिया है और इसलिए अब हम उससे नफरत करने लगे हैं। We are created to be in relationship with God, in the scope of love of God, and we want to jump outside the scope of this love of God and declare freedom, autonomy, and declare God dead. And we hate God. We don't like God. We would rather believe in a theory where we say that we are collocations of atoms and molecules, but we don't want to believe this Creator because He's too good for us. He cannot be trusted now. You know what's good for you. So we declare autonomy. We are deceived, Lord. हमारी रचना जो है परमेश्वर ने प्रेम में की है, प्रेम का उसने एक दायरा बनाया है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उस प्रेम के दायरे को तोड़ करके अपने आप को आज़ाद होने की घोषणा कर देते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर आप कौन हैं, मैं ये निर्णय करूंगा कि मेरी ज़िंदगी किस प्रकार से होनी चाहिए। और इस प्रकार से हम परमेश्वर को दूर हटाते हुए, परमेश्वर के प्रेम को दूर हटाते हुए हम ये मान लेते हैं कि हमारी रचना उसने नहीं की है, बल्कि इस सृष्टि के कुछ अणु परमाणु आपस में मिल गए हैं और इस प्रकार से हमारी रचना हो गई है। और इस प्रकार से हम ऐसी बातों पे विश्वास करते हुए, छलावे का शिकार होते हुए हम ये बात मानने लगते हैं। The one whom we should most love is the one whom we most hate. जिसको हमें सबसे ज्यादा प्रेम करना चाहिए, हम इस छलावे के कारण उससे सबसे ज्यादा नफरत करने लगते हैं। Now that we are a deceived Lord, अब जबकि हम छलावे में, बहकावे में आ गए हैं, let's focus on what is happening with us. That is, we are a deceived Lord, verses 6 to 8. That's the second point for this morning. तो अब ये छलावा हमने देखा कि ये छलावा क्या था, ये बहकावा क्या था। अब हम देखें कि हमारे साथ में ये कैसे होता है, कैसे हम बहकाए गए हैं। 6 से 8वीं आयत तक। Now the fruit, the low hanging fruit seems more desirable than the great Creator. अब यहाँ पे जो उस पेड़ में फल लटक रहे हैं, उनको वो देखने में ज्यादा मनभाऊ हैं बजाय इसके कि वो सृष्टिकर्ता। John Milton, in his famous poetry, The Paradise Lost, says that, and this is a paraphrase of what he said, that man is drawn to a vegetable as an object of desire than the Creator himself. जॉन मिटल करके एक बड़े कवि हुए हैं अंग्रेजी साहित्य में, और उनकी एक किताब है पैराडाइज लॉस्ट, और उसमें वो कहते हैं कि इस वचन के आधार पे कि मनुष्य जो है वो उसकी दिलचस्पी सब्जी जैसे एक फल में ज्यादा है बजाय इसके कि सृष्टिकर्ता में। Now read verse 6. It says, the woman saw the tree and it was good for food and delightful to look. 6वीं आयत को देखिए। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है। We are creatures of desire. हम लोग ऐसे प्राणी हैं जिनके अंदर अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं। It's our desire that produces worship. हमारी ये एक इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, जिसके कारण कि हम आराधना करते हैं। If we don't find Creator, God, as the center of all our desire, अगर हम इस सृष्टिकर्ता को अपने सारे अभिलाषाओं के केंद्र के रूप में नहीं पाते हैं तो we will find all our desires inverted inwardly. तो हमारी सारी अभिलाषाएं जो हैं वो हमारे अंदर अपने आप में केंद्रित हो जाएंगी। So eating disorder does not start with, it's not a modern problem of a modern man, it starts with the Garden of Eden. इसलिए खाने ठीक ढंग से ना खाने की समस्या जो है वो आज के आधुनिक मनुष्य की आधुनिक समस्या नहीं है, ये अदन के बगीचे से चालू है। We have eating disorder. खाने की जो बेकार की आदतें हैं वो हमारी आदत है। Eating disorder. I mean, really, we have eating disorder? Where is that coming from? Where? मतलब Okay, don't look at me and say that you have disorder. क्या इस बात पे भी विश्वास किया जा सकता है कि मतलब खाने की भी अव्यवस्था हमारे अंदर है, ऐसी आदत है कि हम गलत तरीके से खाते हैं? मतलब क्या इस पे विश्वास किया जा सकता है? When our heart is not centered on our Creator, we have eating disorders and such other disorders. And you know them. You know them in your heart. You know the disorders of your life in your heart. And I'll tell you, you can do nothing about them. You may want to do much about it, but you cannot do, you may want to drink and party and you do whatever. You're not going to set that right
because the heart is not centered where it must be. That's the Creator Himself. और सिर्फ खाने की गड़बड़ी वाली बात ही नहीं हमारे जीवन में आती है। जब हमारा ध्यान, हमारी अभिलाषाएं परमेश्वर की तरफ केंद्रित नहीं होती हैं, तो हमारे जीवन में हर एक प्रकार की गड़बड़ी आती है। आप अपने जीवन के बारे में जितनी भी गड़बड़ियां हैं आप जानते हैं, चाहे आप पार्टी कर लें, शराब पी लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक हमारी सारी अभिलाषाएं इस परमेश्वर पे केंद्रित नहीं हो जाती हैं, ये गड़बड़ियां बनी रहेंगी। There are three things that happen in this passage as soon as they eat the fruit for Adam and Eve. Three things between 7 and 8. And three things are: they knew, they sowed, and they hid. 7 से लेकर के 8वीं आयत पे 3 बातें होती हैं। जब वो लोग फल खा लेते हैं तो 3 बातें होती हैं कि उनको वो देखते हैं, और उसके बाद में वो कुछ चीज़ों को बुनते हैं, They hid. और वो छिप जाते हैं। Now, what did they see? वो क्या देखते हैं? They see themselves naked. वो अपने आप को नंगे होते Now, if you notice all the three actions that happened, that they knew, they sowed, they hid, the trend is it's all about hiding, cover up. और अगर आप तीनों चीजों को देखें कि वो क्या देखते हैं, क्या जोड़ करके बनाते हैं और छिपते हैं, तो तीनों बातें कहीं ना कहीं छिपने से जुड़ी हुई हैं। Hiding, covering up is in our DNA. We cannot do away with it. चीजों को छुपाना हमारे जीन्स पे ही शामिल है, हम उससे दूर नहीं कर सकते। Preacher preaching from this passage said that we have become hiders. We hide from God, we hide from others. और एक प्रचारक जो इस भाग से प्रचार कर रहा था, वो कहता है कि हम छिपने वाले बन गए, हम परमेश्वर से छिपते हैं, हम लोगों से छिपते हैं। So when they eat the fruit, all of a sudden their eyes are open and they become naked. And what is the sense of nakedness? What is the author trying to tell us? और जैसे उन्होंने फल खाया, उनकी आंखें खुल गई और उनको पता लगा कि वो नंगे हैं। अब यहाँ पे जो लेखक है, उनके नंगेपन से हमें क्या बताना चाहता है? I quote, "It is the lack of ease with self in the presence of others. They were running even without anyone chasing them. They are covering up even without having any peering eyes on them." That's the instinct that they go into. और लेखक यहाँ पे कहना चाहता है कि जब वो अपने नंगेपन का एहसास करते हैं, तो वो अपने साथ में ही सहज नहीं है, उनको अपने से ही दिक्कत हो रही है। कोई दूसरा नहीं है जो उनको देख रहा है, लेकिन वो अपने आप से ही भाग रहे हैं। It's a sense of guilt. ये उनके अंदर अपराध बोध की भावना है। It's the need to prove that I am right. ये एक उनके अंदर एक ऐसी जरूरत पैदा हो गई है कि वो अपने आप को साबित कर सके कि मैं सही हूं। Prove I am right because I fear rejection. और वो इस बात के लिए अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई मुझे ना कहेगा तो उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर The सकता। shame is a psychological dislocation of our heart in respect to God and ourselves and others. शर्म हमारे अंदर जो इस प्रकार से पैदा हो गई है, वो एक तरीके से हमारे अंदर गड़बड़ी है। सही चीज का सही जगह नहीं होना है, ना तो परमेश्वर के प्रति ना दूसरों के प्रति। We don't want to face reality. हम सच्चाई का सामना करना ही नहीं चाहते। A man who drinks because he wants to suppress the reality. He is covering up. अगर हम ऐसे व्यक्ति को देखें जो शराब पीता है, वो शराब इसलिए पीता है क्योंकि वो अपने बारे में जो सच्चाई है, या जो सच्चाई है दुनिया की, परमेश्वर की सच्चाई है, उसको दबाना चाहता है। So when I'm wearing clothes, I'm not merely covering my indecent parts, but I'm also ensuring that you don't see my imperfections. It's just cover up. You know, I ensure that I wear clothes in a manner where you see that I am so. Okay, I know I'm not that smart, so I'm not trying to look smart here. But all that I'm trying to say is that instinct to cover up is so strong physically, emotionally, and mentally. और मैं कहना चाहता हूं कि जब हम लोग कपड़े पहनते हैं तो हम इस बात की कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ अपने नंगेपन को नहीं ढकते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो असली सच्चाई है वो कोई ना जाने। हम अपने आप को किसी ना किसी तरीके से ढकना चाहते हैं। हम बौद्धिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, आत्मिक तरीके से, हर एक तरीके से एक मुखौटा लगा करके अपने आप को ढकना चाहते हैं। So I changed 3. This is my 3rd shirt in the morning. स्मार्ट लगने के लिए मैंने तीसरी शर्ट बदली। स्मार्ट लगने के लिए नहीं, गलत फहमी में मत आइए। मालूम है कि स्मार्ट नहीं हूं, कुछ और है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम शाहरुख खान, सलमान खान नहीं है, हमें मालूम है, कुछ और है। You want to present, you want to hide something. You see, that's what we do. We cover up by exposing someone else. That's what we are trying to do. तो हम बार बार ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से
हम अपने जिस बात को हम पसंद नहीं करते उसको हम ढक लें, या जो वास्तविक सच्चाई है उसको हम ढक लें। So when God comes to meet Adam and Eve and kind of have a small conversation, you know, just a table talk. So what happened? Adam is like, this woman, और you gave me, I mean, what the heck? Put her under the bus, push her away. और इसलिए परमेश्वर जब बात करने आता है आदम और हवा से, तो आदम बड़े नाराजगी के साथ में परमेश्वर के साथ में पेश आता है कि मतलब यही औरत है, आपने इसको दिया है, इसी ने सब कुछ किया है, इसको दंड दीजिए। So today, when there is a sexual sin happening, rape happening, this is because a woman wears a particular kind of clothes, not because of the horrible sin of man in his heart. और इसीलिए आज के ज़माने में जब भी कोई लैंगिक अपराध होता है तो ये कहा जाता है कि अरे उस लड़की ने, उस महिला ने इस तरीके के कपड़े ही पहने थे कि ऐसा हुआ। आदमी ये इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि उसके दिल के अंदर जो भयंकर पाप भरा हुआ है उसके कारण ये हुआ है। How straight faced can you be, looking at the face of your creator, answering a question and telling, this woman you gave me caused me to sin? What? Really? That's the best answer you have? What is man doing? Covering up. Covering up. He is guilty to the core, but he wants to run and he wants to prove his innocence by blame shifting. कितना बड़ा दुस्साहस है ये, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है कि जिसने आपको एक बड़ी आशीष दी, जिसने आपको बनाया, उसके सामने खड़े होकर के आप ये सवाल कर रहे हैं उससे, आप उसके भलाई पे संदेह कर रहे हैं। यहाँ पे वो आदम जो है इस प्रकार से कह रहा है कि आपने ही ये औरत मुझे दी है। एक तरीके से वो जो दोष देने वाली बात है वो परमेश्वर के ऊपर ही डाल देता है, और इस प्रकार से हमारे जीवन में भी ये बात आ गई है। Sin has caused us to control, use power to control what others know about us. इसलिए पाप जो है वो इस प्रकार की ताकत हमारे अंदर लाना चाहता है कि हम उस ताकत से दूसरों को नियंत्रित करें। We cannot, not just दूसरों को, we control what others know about us. हमारे बारे में दूसरे लोग क्या जानते हैं या जान पाएं उसके बारे में हम नियंत्रित करते We हैं। cannot bear what others know about us. हमारे बारे में लोग इतने से अधिक जान जाएं, ये हमको बर्दाश्त नहीं होता। Social media is nothing but cover-up media. सोशल मीडिया अगर आप देखें तो वहाँ पे और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को छुपाने वाली बातें A हैं। great platform to hide your true self. अपने वास्तविक व्यक्तित्व को छुपाने की एक जगह है। Nothing that we post there is the truth about us. अधिकतर जो भी हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं हमारे बारे में सही नहीं होता। Hey, I am nothing against social media. Please enjoy your social media. Oh, this is just a statement. सोशल मीडिया के बारे में मैं खिलाफ नहीं हूँ, आप उसका आनंद लीजिए। Anushi tells me this morning that social media now aids our hiding by providing filters. अनुश्री ने आज सुबह मुझसे ये कहा कि सोशल मीडिया में बहुत सारे फिल्टर होते हैं, तो उस फिल्टर का इस्तेमाल करके आपको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, इस तरीके से छिपाने में सोशल मीडिया मदद करती है। So we are filtering. That's cover up. और इसलिए हम चीज़ों को फिल्टर कर रहे हैं, हम छान रहे हैं। Relationship is not about honesty anymore. रिश्ते जो हैं अब वफादारी के नहीं रह गए It's हैं। about control. वो सब एक दूसरे को कैसे नियंत्रित करें उसके बारे में। I will go to any extent to spin the story, to control the information flow from my heart to yours so that you know a certain picture about me, not me. और जब मैं किसी भी रिश्ते में होता हूँ तो मैं इस बात की पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे दिल से आप तक जितनी भी बातें पहुँच रही हैं उसमें मैं पूरा नियंत्रित करके बताऊँ आपको, और इस तरीके से बताऊँ कि आप जो मुझे जाने बहुत ही अच्छा करके जाने। In the past few years is when I have started realizing how much controlled I have been in the flow of information from my own heart to let people know who I am actually. और पिछले सालों में मैंने अपने आप को कितना नियंत्रित किया है, इस बात के बारे में मैं सोच रहा था कि किस प्रकार से मैं इस बात की कोशिश करता हूँ कि लोग मेरे बारे में सिर्फ अच्छा ही जाने। So how do we control information? हम इस प्रकार About की us. सूचनाओं को, अपने बारे में जानकारियों को किस प्रकार से नियंत्रित By करते हैं? sense of domination. हम
दूसरे के ऊपर हावी होने के द्वारा अपने सूचनाओं को नियंत्रित करते हैं। manipulation. हम दूसरे को बहकाते हैं या अपने हिसाब से उसको चीजें करवाने की कोशिश करते हैं। To manipulate the other person in such a manner so that that other person believes that such particular image about me and not the real me. हम दूसरे के साथ में किसी व्यक्ति को ऐसे विवश करते हैं, ऐसे मजबूर करते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है हमारे बारे में किसी खास प्रकार की छवि बनाए, वैसी छवि ना बनाए जैसा हम नहीं चाहते। We control information by being aloof from people. We don't want to be with people. हम लोगों से दूर, थोड़ा सा दूर रहते हैं और इस प्रकार से हम अपने बारे में लोगों को नहीं जानने देते हैं। We control information by not committing anything, not having a committed relationship with anyone. और हम Committed in a broader sense, not just the romantic sense, please. मतलब समर्पित रिश्ते की जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ रोमांस वाले रिश्ते की नहीं, बल्कि किसी भी रिश्ते में हम समर्पित रिश्ता या वफादारी का रिश्ता नहीं निभाना चाहते। So it's very interesting how I use anger to cover up. और ये बड़ी दिलचस्पी की बात है कि किस प्रकार से हम अपने क्रोध का भी, गुस्से का भी इस्तेमाल करते हैं रिश्तों में अपने आप को छिपाने के लिए। Almost every time, almost the operating word, every time I get angry with Shija, it is me covering up my own sin and failure through the display of brute force and anger. Almost. लगभग हर एक बार लगभग शब्द पे ध्यान दीजिए, लगभग हर एक बार जब भी मैं सीजा के साथ में गुस्सा होता हूँ तो तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने पापी स्वभाव को छिपा लूं और मैं अपने अच्छी बात को सामने रखूं। I quote, sin is a malignant tumor eating away at our ability to conduct any relationship. और इसलिए मैं एक हवाला देता हूँ, किसी ने ऐसा कहा है कि पाप जो है वो एक कर्क रोग की तरह है, कैंसर की तरह है, ट्यूमर की तरह है जो हमें अंदर से खाता है। This is why we need a deliverer. और इसलिए हमें मुक्तिदाता की, छुटकारा देने वाले की जरूरत है, Because we have a problem. क्योंकि हमारे साथ बड़ी समस्या है। We are people of shame and cover up. चूंकि हम ऐसे लोग हैं जो कि शर्म को अपनाने वाले लोग हैं और छिपाने वाले लोग हैं। Now Christmas will make sense. अब जब हम क्रिसमस के बारे में बात करेंगे तो हमें अच्छे से समझ Now आएगा। Christmas is not going to be about lights, cakes, stars. If you want to do that, please, but don't make it about it. और इसलिए जब आप इन सारी बातों को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्रिसमस सिर्फ जो केक के बारे में नहीं है, खाने के बारे में नहीं है, लाइट्स के बारे में नहीं है, बल्कि इसके बारे में है। You want to eat cake? Please come to my home. I'm trying to make one. ऐसा नहीं है कि मैं लाइट्स के खिलाफ हूँ, केक के खिलाफ हूँ, खाने के खिलाफ हूँ। अगर आपको केक खाना है तो आप मेरे घर 8 to 15, chapter 3, deliverer, the need of a deliverer. If man ended up hiding from God, God comes looking out for man. अगर मनुष्य जो है वो परमेश्वर से दूर हो गया, उससे छिप गया, तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर उसको खोजते हुए आया। Okay, I don't know why I keep shifting and shaking. I don't know. So please bear with me, online friends. Okay, so man is hiding. Now between 8 and 15, God comes looking for man. और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्रकार से मनुष्य जो है वो परमेश्वर से छिपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है उनको खोजते हुए आता है। Christmas is the story of God coming looking for man. क्रिसमस जो है वो एक सच्ची कहानी है कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है मनुष्य की तलाश में उसको खोजते हुए आता है। So verse 9, God comes looking for man. और 9वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्य को खोजते हुए आता है। The question is, you terrible, atrocious, obnoxious creatures, what the heck have you done? That's not the question. यहाँ पे सवाल परमेश्वर इस तरीके से नहीं पूछता है कि हे बेवकूफ, हे पापी, हे अधर्मी, कहाँ है आदम तू? And some good words that I use for my kids occasionally when I get angry, that's also not used here. जब मैं गुस्सा हो जाता हूँ तो कुछ बहुत ही सुंदर शब्द मैं अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, वो शब्द भी यहाँ नहीं है। The question is infused and laced with love.
यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है वो सवाल प्रेम में डूबा हुआ है। Where are you? तू कहाँ है? I want to be with you. मैं तेरे साथ होना चाहता हूँ। And Voskamp says his love is unconditional, unbeatable, unfailing, unwrappable love. Your God refuses to give up on you. एन वॉस्कैम्प करके एक लेखिका हैं और वो कहती हैं कि उसका प्रेम जो है वो शर्त रहित है। True, उसको उसका जो प्रेम है वो सच्चा है। उसको किसी भी रीति से उसको पछाड़ा नहीं जा सकता, कभी वो असफल नहीं होता है। वो ऐसा नहीं है कि उसको हम कहीं लपेट करके रख सकें। बहुत ही बड़ा है उसका प्रेम। वो प्रेम ऐसा है कि परमेश्वर उस प्रेम में होकर के कभी भी नहीं कहता कि मैं तुम्हारे पीछे आना छोड़ दूंगा। wherever you are, I will find you. वो कहता है कि तुम जहां भी होगे मैं तुम्हें खोज लूंगा। You don't need to control anything about yourself. अपने बारे में आपको कुछ नियंत्रित करने की जरूरत नहीं I है। know everything about you. मैं आपके बारे में सब कुछ जानता I हूँ। just want you to answer the question, where are you? Will you answer? मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, तुम कहाँ हो? क्या तुम इस सवाल का जवाब दोगे? Voskamp goes on to say, no matter what the day holds for you or how seasons of life unfolds, God holds you and enfolds you. एंड वो स्कैम फिर से आगे कहते हुए कहती हैं कि ये बात मायने नहीं रखती कि आपका दिन कैसे गया, आपके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है वो आपको जानता है और वो आपके जीवन को अपने तरीके से आगे खोलेगा। So if you read verses 15, basically verses 14 onwards to verse 19, it's the nestling of the nest of curses that has been pronounced, and the consequence that man and woman would be facing. Nestled in these curses and consequence and negativity is this shining light, a foreshadowing of a redeemer, a deliverer. And this is what God says: between your offspring and her spring, that is verse 15, I will put an enmity, the seed of a woman. He will strike your head and you will strike his heel. There is a promise for the deliverer. This is your God. This is your God who you need to seek, who seeks for you. He's asking the question, where are you? He's set the plan of redemption in motion. Go ahead. 14वीं आयत से लेकर के 19वीं आयत के बीच में हम पाते हैं कि किस प्रकार से श्राप देने के बीच में भी छुटकारा देने वाले का वायदा किया गया है। 15वीं आयत में वो लिखता है कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके बीच के इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इस प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं छुटकारे का एक रास्ता खोल रहा हूँ, छुटकारे की एक योजना बना रहा हूँ। सवाल सिर्फ इतना है कि तू कहाँ है, तू उसका जवाब दे दे। Doesn't matter what your past is, and doesn't matter what you are right now, and doesn't matter what condition that you are in, your Savior seeks for you and he asks the question, where are you? Will you answer my plea? Will you answer my question? We need not hide from God because God has come into the world himself as a man. आपका बीता हुआ कल कैसा था, आज कैसा है, आपके संघर्ष क्या है, ये सारी बातें मायने नहीं रखती। परमेश्वर सिर्फ ये सवाल पूछता है कि आज आप कहाँ हो। वो आपको खोजने के लिए आ रहा है। वो छुटकारा देने की योजना बना चुका है और वो प्रतिज्ञा कर चुका है। 2000 years ago, a scene unfolded in a garden called Gethsemane. 2000 साल पहले एक और दृश्य हमारे सामने आया, वो भी बगीचे में, लेकिन ये बगीचा दूसरा था। It also had a tree beyond it. और ये भी वहां पे भी एक पेड़ था जो उससे बहुत दूर था, अलग A था। tree that was not so desirable. एक ऐसा पेड़ जो कि अभिलाषा के लायक नहीं था। A tree named cross. और उस पेड़ का नाम क्रूस था। Sign of curse and judgment. एक ऐसा चिन्ह जो कि न्याय और श्राप का प्रतीक था। But on that day, लेकिन उस दिन the man who faced it was the Son of God himself. जिस व्यक्ति ने उसका सामना किया, उसको अपनाया, वो स्वयं परमेश्वर था। Even though the tree was not desirable, what was desirable for him was the will of God. हालांकि वो पेड़ अभिलाषा के लायक नहीं था, लेकिन जो उसकी अभिलाषा थी वो उसके पिता की इच्छा की He थी। died on the cross. वो क्रूस पे मर गया। He was stripped naked on the cross. उसे क्रूस पर नंगा कर दिया गया। He bore brutality on the cross. क्रूस पे बड़े अत्याचार सहे उसने। He was marred beyond recognition.
इतना ज़्यादा उसको कुचला गया कि पहचाना भी नहीं जा Above जा all, पा he रहा था। bore the penalty of our sin, और सबसे बढ़ करके उसने हमारे पापों का दाम अपने ऊपर thus ले लिया, giving us a gift of life, an eternal, everlasting life of love relationship with our eternal Creator. You don't need any man's love, any woman's love in your life. What you need is the love of this Creator, and this Christmas must remind you that, my dear church members. Your identity lies in the love of the Creator for you, not in the love of a man or a woman or whatever. और इसलिए उस प्रकार से उसने अपना जीवन दे करके हमसे प्रेम किया। इस तरीके से उसने प्रेम किया कि परमेश्वर पिता के साथ में, हमारे बनाने वाले के साथ में हमारे रिश्ते को फिर से बहाल किया। प्रियो, हमें किसी स्त्री और पुरुष के प्रेम की असली ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें असली ज़रूरत जो है वो हमारे इस प्रेमी परमेश्वर की है। जब वो प्रेम हमारे साथ में होगा तो हम जो अपनी पहचान बनाने के लिए इतने परेशान रहते हैं, हम उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और क्रिसमस का असली मतलब हमें तब समझ में आएगा। You don't have to hide. हमें छिपने की जरूरत नहीं है, You don't have to run. हमें दौड़ने भागने की जरूरत नहीं He है। has placed your identity in Him. उसने हमारी पहचान को अपने में बना लिया है। Your need for love, your neediness for love is met with His eternal love. हमारी प्रेम की जो जरूरत है उसने अनंत काल के प्रेम से पूरी की He है। is the gentle and lowly hearted lover of your soul. वो बहुत ही अपने दिल में जो है वो नम्र है, दीन है, हमारी आत्माओं से Will प्रेम you करने use this वाला है। Christmas season to recalibrate your heart, to center it on Him who loves you eternally, faithfully, sincerely, honestly, without taxing you, without killing you, without sucking the life out of you, instead flourishing you? क्या इस क्रिसमस के सीजन में, इस माहौल में आप ये कर पाएंगे कि बिना और किसी को प्रेम किए हुए आप इस ऐसे परमेश्वर को प्रेम करेंगे जो बड़ी वफादारी के साथ में, जो जीवन देने के साथ में, जो आपका जीवन ना लेकर के जीवन दे करके आपसे प्रेम करता है, आपकी भलाई करता है, आपको फलने फूलने देता है, उस प्रकार के प्रेम को क्या आप अपनाएंगे? Let me end with this observation from Ann Voskamp. एंड वॉशकैम्प ने एक बड़ी बात कही है, उसके साथ में मैं समाप्त करना चाहूँगा। Okay, this is for those with young children. Ann Voskamp has written a Christmas devotional, excellent work. Please buy it if you could. She says the Old Testament, the first question is from God, where are you? एन वॉशकैम्प ने एक अच्छी किताब लिखी है बच्चों के लिए, अगर आप चाहें तो उसको ज़रूर खरीद करके पढ़ें। वो कहती है कि पुराने नियम में सबसे पहला सवाल जो परमेश्वर ने पूछा वो ये है कि तू कहाँ है। The question is out of love. और ये सवाल जो है वो प्रेम में होकर पूछा गया। She observes that the first question in the New Testament. और वो इस बात पे गौर करती है कि नए नियम में जो पहला सवाल है What is it? वो कौन सा है। I mean, I'm asking you, what is the first मैं question? आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा सवाल है नए नियम में। Where is He? वह कहाँ है। That must be your response. And when you ask that question, और वो हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और जब हम इस प्रकार से सवाल पूछेंगे, you will find Him with open hands ready to wrap you around in an eternal embrace of love. तो आप पाएंगे कि वो खुली बाहों के साथ में तैयार है आपको अपने उस अनंत प्रेम में सपेट लेने के लिए। Wishing you all a great Advent season as well as a great Christmas to come. Stay with me on this journey. We've just started from looking at Christmas from afar, but we will close up pretty soon. Till then, enjoy Christ in your life. Enjoy His love. Be of good cheer. Thank you. क्रिसमस और एडवेंट की मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, और तब तक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एडवेंट के बारे में, क्रिसमस के बारे में संदेशों की जो श्रृंखला है उसका आनंद उठाने के लिए इस यात्रा में मेरे साथ में बने रहें। तब तक आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और परमेश्वर के प्रेम का आनंद उठाते रहें। शुक्रिया।